الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، میں نے اپنے ساتھیوں سے چند ہفتے پہلے خود ہی خواہش کی تھی کہ نماز کے موضوع پر جو ہے ضروری ہے. ایک تو نماز کی اہمیت کے پیش نظر اور دوسری طرف اتنے بڑے فریضے سے جو ہماری لاپرواہی ہے، ہماری سستی ہے اور ہمارا تغافل ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمیں بار بار یاد کرایا جائے کہ نماز دین کا ستون ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ستون سے تعبیر کیا، یعنی جس پر گھر قائم ہوتا ہے، اور گھر کو دین کو ایک گھر سے تشبیہ دی، یعنی دین ایسا گھر ہے جو نماز کے کھمبے پر ٹکا ہوا ہے، نماز کے کھمبے پر قائم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کھمبا ہٹا دیا جائے تو گھر گر جائے. تو اس تشبیہ سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نماز کی اہمیت یہ بھی ہے کہ نماز مومنین کی معراج، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے. اور کا اندازہ ہوتا ہے کہ ساری عبادتیں زمین پر فرض کی گئی. روزے کی فرضیت کا جب حکم آیا تو اللہ کے رسول زمین پر تھے. اسی طرح حج، زکوٰۃ اور دوسرے اسلام کے فرائض کا جب حکم دیا گیا تو یہ سارے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر وصول کی. مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ آپ کو عرش اعظم پر ملی. اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کرائی اور وہاں اس فریضے کو دیا گیا. اس کے علاوہ قرآن پاک میں بے شمار آیت ہے. اللہ فرماتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے جو لوگ ایمان لائے، کہ ایمان لانے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی گویا نماز قائم کرنا ایمان کی پہچان ہے. سورہ بقرہ ہی میں شروع میں جب بتایا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہے؟ جو لوگ ایمان اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. تو گویا مومن ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری اور متقی ہونے کے لیے بھی نمازی ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اسی بات کا انہیں حکم دیا گیا ہے، مومنین کو، اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، اور جو ہے دین کو سب کا سب اللہ ہی کے لیے ٹھہرائیں۔ اس کے علاوہ بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں، آپ ذرا قرآن تلاوت کرتے ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ نماز کے سلسلے میں کس قدر حکم دیا گیا ہے اور کتنی بار اس کو دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی جو ہے نماز کی اہمیت کو جو ہے بڑے ہی جو ہے اس کو احتشام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جو حدیث اسلام کی بنیادوں والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر۔ تو پہلا تو ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور اس کے بعد اعمال میں جو پہلی چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور ایک چیز اور بھی قابل توجہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا، نماز قائم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا وہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مگر پڑھنے والوں میں بھی بہت تھوڑے سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا جو ہے یہ کہ بھئی آپ کسی طرح بھی آپ وقت آئے اور تاخیر ہو جائے اور سورج پیلا پڑ جائے تو عصر کی نماز پڑھ لیجیے، اور بالکل طلوع ہونے کا خطرہ ہو جائے تو پھر آپ فجر کی نماز پڑھیے، اور جاتے جاتے آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیے۔ جماعتوں کا ترک کیجیے، جلدی جلدی پڑھیے۔ پڑھنے میں یہ سب شامل ہے، مگر نماز قائم کرنے کے یہ سب خلاف ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھا، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح وقت پر پڑھا جائے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھا جائے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام شرائط کو جو ہے ان کے آداب کے ساتھ پورا کیا جائے۔ استقبال قبلہ ہو، طہارت ہو، بدن کی طہارت ہو، جگہ کی طہارت ہو، لباس کی طہارت ہو، نیت کا معاملہ ہو، یا جو بھی جو اس کے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے، تعدیل ارکان ہے، ان سب کی پوری رعایت کی جائے، اسے نماز قائم کرنا ہے۔ اسی لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور اس کے علاوہ نماز جو ہے، نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو ہے اجر کا اور نہ پڑھنے پر بے شمار وعید کا۔ جیسے کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کو کرنے پر ملنے والے ثواب سے ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ نہ کرنے پر جو عذاب ہے، نہ کرنے پر جو گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر عقیدے والا کفر نہیں ہے، یعنی کفرانی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان تحفے کو معراج پر عطا کیا، اور اس کے بعد بھی اس تحفے کی قدر نہ کی جائے۔ مگر نماز نہ پڑھنے کو کفر سے جو اللہ کے رسول نے تعبیر کیا ہے، یعنی اسے کفر قرار دیا ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ یعنی وہ حقیقی معنی میں کفر نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، مگر وہ قریب و کفر ہوتا ہے۔ یعنی کفر کا مطلب وہ قریب و کفر ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر حیات ظاہری کے آخری لمحات گزار رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے جو آخری وصیت جو ہے وہ نکلی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری الفاظ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس حیات ظاہری میں ادا ہوئے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک۔ تو یہ دو وصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ نماز سے غفلت کریں تو یقیناً جو ہے وہ محبت کا دعویٰ جو ہے وہ اس کے آگے ایک سوال یہ نشان بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے محبوب کی وصیت کا خیال نہیں کرتے ہیں تو کیسے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے،
یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اگر کوئی توہین کر دے تو بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہیں، اگر کوئی ذرا سی تنقید شام کر دے تو اس کے خلاف بڑے بڑے اشتہارات شائع کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، مگر یہ بتائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا خیال نہ کرے، کیا اسے حق ہے کہ آپ کی توہین کیے جانے پر بڑی بڑی ریلیاں نکالے؟ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کا تاریخ ہو، کیا اسے یہ حقیقی معنوں میں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ریلیاں اور جلسے اور جلوس کرے؟ تو حضرات گرامی، نماز جو ہے وہ بے حد بنیادی چیز ہے۔ نماز ہی وہ کتب ہے، وہ مرکز ہے جس کے چاروں طرف جو ہے وہ اسلامی زندگی جو ہے وہ پھوٹتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث الکفارات، تین چیزیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ تین چیزیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی انتظار میں جو بھی منٹ آپ کو گزر رہا ہے، نماز کے انتظار میں جو لمحہ آپ گزار رہے ہیں، وہ سارا وقت جو ہے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسری چیز نقل الاقدام الی الجماعات، اور جماعت کی طرف جو ہے وہ اپنے قدموں کو جو ہے بڑھانا، اپنے قدموں کو جو ہے بڑھانا جو ہے یہ بھی کفارے کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام تھے، بعض کا گھر جو ہے وہ مسجد سے بہت دور تھا، مگر وہ مسجد کے قریب گھر نہیں بناتے تھے۔ جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تمہارے پاس زمین ہے، مسجد کے قریب تم آ سکتے ہو، بلکہ حضرت ابی بن کعب نے ایک صحابی کو جو کافی دور تھے رہتے تھے، ان سے کہا کہ اگر تم ایک خچر خرید لو تو تم کو آنے جانے میں کانٹے سے نجات مل جائے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں اس کا خطرہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر میں خچر خرید لوں گا تو ضرور اس پر سواری کروں گا، اور جب سواری کروں گا تو قدموں کے ذریعے چل کر مسجد جانے کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ لہٰذا میں نہ مسجد کے قریب آنا چاہتا ہوں، نہ ایسی جانور خریدنا چاہتا ہوں کہ اگر میری ملکیت میں ہوگا تو بھی میں پیدل چلنا چھوڑ دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نقل الاقدام الی الجماعت، قدموں کو جو ہے جماعت کی طرف بڑھانا، اور نماز کی طرف پیدل چل کر آنے والے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی بات کی ہے۔ تو گویا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، صحیح میں امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس کو جو ہے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی کے دن، قیامت کی اس دشوار ترین دن جو ہے 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے سائے کرم میں لے لے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص ہے، آپ کو بتائیں کہ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ ایسا شخص جس کا دل جو ہے وہ مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ بھی ان میں سے ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے سائے رحمت میں لے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے رحمت کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ ایسے میں جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کرم میں لے گا، ان میں ایک جو ہے وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 درجات، 3 چیزیں جو ہیں وہ درجات کو بلند کرنے والی ہیں۔ ان میں جو تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس وقت نماز ادا کرے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، یعنی وہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو حضرات گرامی، نماز جو ہے معراج المومنین ہے، نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب ایسی عبادت ہے جو ایمان کے بعد جس کا درجہ سب سے بلند ہے۔ نماز وہ عبادت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں،
मशहूर शेर आप बराबर पढ़ते हुए मस्जिदों में लिखा रहता है कि रोज़े महशर की जान उदास कुव्वत अव्वली पुरुष से नमाज कुव्वत, कि क़यामत के दिन जो बेहद कठिन दिन है, सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का सवाल होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस सवाल से बेड़ा पार हो गया तो समझो सारी मुश्किलें आसान है। तो गोया खुद नबी करीम ने फरमाया कि जिसने नमाज के सवाल के जवाब से जो बच गया, यानी नमाजी रहा, उसके बाद में आने वाली सारी मुश्किलें जो है आसान हो जाएंगी, मगर जो यहाँ फंस गया फिर उसको नजात मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो इतनी अहम इबादत है, इतनी जो है वो ज़रूरी चीज़ है, और उससे हम इस कदर गफलत करते हैं। और ये भी अहमियत की बात है कि नमाज को जमातों के साथ अदा करने के लिए बनाया गया है। हम लोग ऐसा मामला करते हैं जैसे कि नमाज पढ़ लेना गोया दीन पर कोई एहसान कर देते हैं, नमाज पढ़ लेने पर समझते हैं कोई बहुत बड़ा कारनामा अदा कर देते हैं। दोस्तों, नमाज पढ़ना तो ये हमारी ड्यूटी है, और अदना दर्जे की ड्यूटी ये है कि हम उसको जमात के साथ जाके अदा करें। अगर हम जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते तो गोया अपनी ड्यूटी को मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आपने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं मैं उनके घरों के साथ उन्हें चला दूं। तसव्वुर कीजिए, वही देखिए कि नमाज पढ़ने वालों को जो घर में पढ़ते हैं, यानी हमारा हाथ तो ये नमाजी नहीं पढ़ते, वहाँ ये है कि नमाज पढ़ने वाले जो जमात में नहीं आते हैं उनके घरों को जलाने की जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो वईद फरमाई। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जमात के साथ नमाज पढ़ना जो है वो कितना जो है कितनी अहमियत का हामिल है। यहाँ तक कि अगर कोई नाबीना है और उस नाबीना के पास अगर कोई गुलाम और नौकर है जो बीना है तो उसको भी जमात छोड़ना जायज़ नहीं। अपनी नाबीना है और उसके साथ नौकर है, अगर वो नौकर रखने की इस्तिताअत रखता है या उसके पास नौकर है तो उस पर भी नमाज में हाजिर होना वाजिब है, ताकि वो अपने नौकर का हाथ पकड़ के जो है मस्जिद तक आए। तसव्वुर कीजिए कि आँख वाले जो जमात तर करते हैं वो कितनी बड़ी ग़ज़ब इलाही को दावत देते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी को जो है वो दावत देते हैं। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि नमाज का एहतमाम किया जाए। और जो हम तज़किया नफ्स की बात करते हैं, आप यकीन कीजिए किसी तज़किया नफ्स का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है जो नमाज के बगैर हो। अरे अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो आखिर तज़किया नफ्स का तसव्वुर क्या होगा? दिल की पाकी, दिल की तहारत, अखलाक की सफाई, ज़ाहिर और बातिन की आरास्तगी जिसकी हम बात करते हैं वो उसकी बुनियाद नमाज है। नमाज के बगैर न कोई तक़वा हासिल होगा, न कोई परहेज़गारी हासिल होगी, न कोई मकाम हासिल होगा, न दिल की पाकीज़गी हासिल होगी, न अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो है सुलूक की कोई मंजिल तय हो सकती है, न सुलूक अल्लाह की कोई राह जो है वो तय हो सकती है। और तमाम तर बुजुर्गों का इत्तेफाक है कि ये ऐसी इबादत है जो किसी मरहले में माफ़ नहीं होती। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिंधानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लताइफ़ शफ़ी में फरमाया कि मैंने तमाम जो है मासिर बुजुर्गों से मैंने मुलाकात की और उनके मलफूज़ात को मैंने पढ़ा, और अल्लाह ताला ने जो है अपने फज़्ल करम से मुझे अपने बंदों के तमाम मकामात से आगाह फरमाया, मगर मुझे कोई मकाम ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पहुँचकर नमाज माफ़ हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपना अमल बता रहा है कि आप नमाज का कितना एहतमाम करते थे कि आखिर बरज़ुल मौत में जिसमें आपका विसाल हुआ, जिसमें आप रफ़ीक़ आला से जाके मिले, उसमें भी ये होता था कि जब आप जो है ज़रा सा आपकी तबीयत बहाल होती थी तो आप लोगों के सहारे जो है वो जमात में आते थे और जमात के साथ जो है नमाज अदा करते थे। ये लोगों को तालीम देने का ये तरीका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस अमल के ज़रिए ये तालीम दे रहे हैं कि नमाज जमात के साथ जो है किसी भी हाल में जो है वो माफ़ नहीं है, और हर शख्स को इंतहाई दर्जा की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ आप जमात की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि कुरान में आया है कि जब तुम जंग कर रहे हो, जब तुम हालत जंग में हो तो भी जो है जमात के साथ नमाज अदा करो। मुसलमानों की आधी फौज जंग करेगी और आधी फौज जो है वो नमाज पढ़ेगी और कसर नमाज पढ़ेगी, यानी नमाज में कसर करने की इजाज़त दे दी गई, भले ही वो फौजें जो है महीनों से वहाँ मुक़ीम क्यों न हो। मगर जमात जंग जैसी हालत में भी जो है जमात जो है वो तर्क करने का हुक्म नहीं है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमन में हम लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास तो नमाज छोड़ने का कोई हीला ही नहीं। जब जंग हो रही हो, दुश्मन सामने हो, उस तीर बरसा रहा हो, उसकी तलवारें चमक रही हो, वो मुसलमानों को जो है ख़त्म कर देना चाहता हो, इस्लाम को मिटा देना चाहता हो, ऐसे वक्त में भी कुरान ने
जमात को जो है वाजिब करार दिया और हुक्म दिया, बाकायदा तरीका बताया कि आधे लोग जो है वो जंग करें दुश्मन से और आधे नमाज पढ़ें, और जब आधे नमाज पढ़ चुके तो वो मोर्चा संभाल ले और बाकी आधी जो है वो आके पढ़ ले, बल्कि इमाम अपनी जगह पर रहेगा, वो 4 रकात पढ़ेगा, बाकी लोग 2-2 रकात पढ़ के और फिर मैदान जंग में चले जाएंगे। इससे जमात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम जमात के बारे में क्या तालीम हमें देना चाहता है, क्या नसीहत हमें करना चाहता है और कैसी ताकीद हमें करना चाहता है कि जब जमात हालत जंग में माफ नहीं है, हालत जंग में माफ नहीं है तो आम हालत में कैसे माफ होगी। तो एक तो नमाज होनी चाहिए, जमात की अहमियत बेहद ज़रूरी है कि कोशिश कीजिए कि जमात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें, सारी नमाजें या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें जमात के साथ पढ़िए। और दूसरी बात ये कि नमाज में इखलास पैदा करने की कोशिश, इखलास पैदा करने के लिए कई तरीके हैं। अल्लाह का खौफ है, या ये कि हालत नमाज में हम वक्त ये बात ज़हन में रखिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू व अम्मा की बारगाह में खड़े हुए, या आप जो है वो जहन्नम और उसकी क़यामत और उसकी हौलनाकी को याद कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है ये इखलास पैदा करेंगी। और नमाज में जैसे ही ख्याल इधर उधर जाए फ़ौरन जो है अल्लाह के खौफ को, अल्लाह की अज़मत को जो है जहन में लाइए, ताकि फिर आप इखलास जो है वो बेहद ज़रूरी है। जब तक इखलास नहीं है तो कैसी नमाज है। हम लोगों में से बाज़ लोग तो ऐसे आदि नमाजी हैं कि नमाज में चले जाते हैं और वापस लौट आते हैं, उनसे पूछे कि इमाम ने कौन सी सूरह पढ़ी तो याद नहीं होती, यानी वो इमाम की पढ़ी हुई सूरह भी उनको नहीं सुनाई पड़ती। वो अपने ख्यालात में जो है ऐसे जो है वो मस्त रहते हैं कि वो गए और चले आए, पूछे इमाम ने कौन सूरत पढ़ी तो उनको याद नहीं रहता। ये दरअसल बुनियादी तौर पर बाज़ 2 तरह के लोग हैं। बाज़ ऐसे हैं कि जिन्हें शिद्दत इस्तिग़राक़, खुदा के खौफ में इतना गर्क रहते हैं कि उनको याद नहीं रहता क्या सुने, और बाज़ दुनिया में इतना गर्क रहते हैं कि उनको याद नहीं रहता कि नमाज में इमाम ने कौन सी जो है सूरत पढ़ी। तो दोस्तों ये इखलास के बिल्कुल मुनाफी है। ये एक नमाज की सूरत है, ये हकीकी नमाज नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि जो है हम एक ऐसी बारात का तस्वुर करें कि जिसमें पूरे लोग आए हों, पूरा लाओ लश्कर आया हो, सारे अज़ा आए हो, सारे दोस्त आए हों, दूल्हे के सब कुछ आए हों, मगर खुद दूल्हा नहीं आया हो। जाहिर सी बात है कि ऐसी बारात जो है कहीं भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कहीं भी ऐसी बारात का वेलकम नहीं किया जाएगा, चाहे वो जितने लग्जरी गाड़ियों पर बैठ के आई हो, चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन के आए हो, चाहे वो जितने करोफर और तुझको एहतशाम के साथ वो बारात आई हो, मगर अगर बारात के साथ अगर दूल्हा ना हो तो ऐसी बारात में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दोस्तों ये भी अल्लाह के हुजूर हम एक बारात लेकर जाते हैं जिसमें हाथ पैर आँख कान नाक ये सारा बदन जो है ये बाराती होते हैं और दिल जो है वो नौशा होता है। लेकिन अक्सर ऐसे औकात में होता है कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं मगर दिल मौजूद नहीं होता और सारे बदन जो है वो बदन के सारे पार्ट्स जो है मौजूद होते हैं मगर हमारा दिल मौजूद नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि ऐसी नमाज जो है वो हमारे अंदर ईमानी को आगे नहीं बढ़ा सकती, ऐसी नमाज हमारे ईमानी कैफियत को मजबूत नहीं कर सकती, उसे जिला नहीं बख्श सकती। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि इखलास के साथ जो है वो नमाज अदा करें और पूरी कोशिश करें कि नमाज में हुजूरी क़ल्ब रहे, दिल को हाजिर रखें, दिल से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो है वो मुतवज्जे हों। और इहतिमाम नमाज की बात हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जलीलुल क़द्र ताबई, यानी ताबईन में अगर चंद ताबई का नाम लिया जाए तो उनमें उनका नाम आता है हज़रत सईद इब्न मुसय्यब। 50 साल तक उनकी नमाज में तकबीर ऊला नहीं छूटी, 50 साल तक तकबीर ऊला नहीं छूटी और उन्होंने कभी भी किसी नमाजी की गर्दन नहीं देखी। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि हर नमाज 50 साल में उन्होंने पहली सफ में अदा की, तो पहली सफ में अदा करने वाला किसी की पीठ नहीं देख सकता, किसी की गर्दन नहीं देख सकता, क्योंकि वो खुद सबसे आगे होता है। तो गोया 50 साल तक जो है उनकी तकबीर ऊला और जमात सफ़े अव्वल जो है वो तर्क नहीं। तो दरअसल ये जो है वो नमाज का जो है वो कंसेप्ट है और ये हकीकी तौर पर जो है वो नमाज है। एक अबू ज़ुरा राज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मशहूर है, तबे ताबईन में से हैं कि वो 20 साल तक उन्होंने दमिश्क के एक मस्जिद में एक मेहराब में नमाज पढ़ी, 20 साल तक, 20 साल। और उस मेहराब में जो है कुरान की आयतें लिखी हुई थी, कुरान की आयतें लिखी हुई थी। एक बार वो दर्स दे रहे थे अपने दरसगाह में, तो किसी ने उनसे पूछा कि मस्जिद में कुरान की आयतें लिखने के बारे में मसला क्या है।
تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے اسے مکروہ قرار دیا. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جس محراب میں نماز پڑھتے ہیں سمجھے اس میں تو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے 20 سال میں کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری محراب ہے کیسے. یعنی خشیت الہی اور حضور قلب کا یہ عالم اور استغراق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں پر 20 سال نماز پڑھی. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز اگر کسی مسجد میں پڑھ لیں تو باہر نکل کے آئے کہا جائے تو پوری مسجد کا نقشہ بنا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی دیواریں ہیں اور کتنی کون سی دیوار تقریباً کتنی ہے اور کتنے کیا کیا لکھا ہوا ہے اور محراب کیسی ہے اور ممبر کیسا ہے، یہ ساری تفصیل ہم بتا سکتے ہیں. مجھے جانتے کیوں؟ یہ ساری تفصیل ہمیں اس لیے یاد رہتی ہے کہ نماز میں دل حاضر نہیں رہتا. اگر نماز دل میں اگر دل جو ہے نماز میں حاضر ہو تو یا تو ان کا بالکل بھی پتہ نہ چلنے پائے یا بہت معمولی سی چیزیں پتہ چلیں. مگر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ مسجد کے بارے میں ایک نماز میں، اور یہاں حال یہ کہ حضرت ابو زرع کے بارے میں ہے کہ 20 سال تک محراب میں نماز پڑھی. پوری مسجد کی بات نہیں ہے، جس محراب میں نماز پڑھی اسی محراب کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی. تو حضرات گرامی، 2 چیزیں بے حد ضروری ہیں. ایک تو سب سے پہلے نماز کا اہتمام، اور یاد رکھیے کہ نماز کی عادت جو ہے جیسے تمام اچھی بری عادتیں جوانی ہی میں جو ہے پڑتی ہیں. میں نے برابر بتایا کہ بڑھاپے کا انتظار کرنا یہ صرف کمزوروں کا جو ہے ہوتا ہے، یہ ایک نفس کا ایک ہیلا ہوتا ہے. ارے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا پتا ہے کسی کو نہیں پتا. اور اچھا اگر مل بھی گیا تو جس وقت جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا اس کا ارادہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھے ارادے سے جو ہے کوئی نیک کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ جوان ہیں، آپ کا ارادہ بھی جوان ہے. آپ ابھی آپ جو ہے جوان ارادے کے ساتھ جو فیصلہ کر سکتے ہیں، جو ارادہ کر سکتے ہیں، جو عمل شروع کر سکتے ہیں، وہ بڑھاپے میں امکانات اس کے کم ہو جاتے ہیں. بڑھاپے میں دوسری بات، بڑھاپے میں اگر کوئی جو نماز پڑھتا بھی ہے، اگر اسے بڑھاپا مل جائے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، اس کا ارادہ اس کا ساتھ بھی دے دے، مگر اس کے باوجود بھی جو ضمیر کی خلش ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ کا ضمیر بڑھاپے میں آپ کو خلش دے گا کہ ساری عمر جو ہے بے عملی میں گزر گئی، ساری عمر بے نمازی ہونے میں گزر گئی، ساری عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری میں گزر گئی. تو کم سے کم یہ خلش تو ضرور رہے گی. یعنی اگر فرض کیجیے کہ آپ نے توبہ بھی کر لیا، آپ نے نماز بھی شروع کر دی، آپ کا ارادہ بھی آپ کے ساتھ رہا، تو بھی اگر آپ نے آج تاخیر کی، آج نماز کے عادی نہیں بنے، آج اس اہم ترین عبادت سے آپ نے روگردانی کی، تو بڑھاپے میں بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ملے گا تو نماز کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، آپ کا ارادہ آپ کا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اور اگر یہ سب کچھ حاصل ہو جائے تو بھی آپ کو زمین کی خلش آپ کے ساتھ رہے گی، دل میں ایک چبھن رہے گی. پوری عمر جو ہے گناہوں میں گزار دی، پوری عمر اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، پوری عمر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو جو ہے چھینتا رہا. تو یہ ساری جو خلش ہے اس کے ساتھ جینے سے بہتر یہ ہے کہ آج جو ہے شروع کیجئے اور پابندی سے شروع کیجئے، جماعت کے انتظام کے ساتھ شروع کیجئے، تقوی الہی اور اخلاص کے ساتھ جو ہے شروع کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کی حضوری کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو نماز کے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز کو جاننے، اسے سیکھنے اور اسے ادا کرنے کی بلکہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی بات پوچھنی ہو وہ پوچھ سکتا ہے. موضوع اتنا واضح اور اتنا آسان اور اتنا عام ہے کہ میرے خیال میں اس میں کسی قسم کے سوال کی گنجائش بہت کم ہے. یہ تو دراصل وہ چیزیں جو آپ سب جانتے ہیں، یہ جو ایک بیٹھ کے مذاکرہ ہے، یعنی ایسی چیز کا ذکر کرنا جو کرنے والا بھی جانتا ہے، سننے والے بھی جانتے ہیں، مگر اچھی بات کو بار بار ذکر کرنا بھی اچھا ہی ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ واقعہ ابھی ہوا کہ ہم چونکہ نئے ہیں یہاں پر، تو غلط وجہ سے ہم لوگ نماز پڑھ لی میں، تو بعد میں پتہ چلا فرض پڑھنے کے بعد کہ قبلہ دوسری طرف ہے، تو
और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ऑफिस में कि कई बार जो है गलत क़िबला नहीं मालूम होने की वजह से गलत क़िबले से फिर के नमाज़ पढ़ चुके हैं कई एक अरसे दौरान से। तो अब चूँकि हमें अभी पता चला एक ही नमाज़ थी, हमने उसे दोहरा दी। तो जो लोग कई अरसे से गलत क़िबले देखिए दो चीज़ें हैं। इस्तक़बाल क़िबला जो है नमाज की शर्त में से एक शर्त है, 6 शर्तें हैं उनमें से एक शर्त है, और बगैर शर्त की कोई चीज़ मशरूत जो है वो पूरा नहीं होता, आप समझते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे हम कहें कि साहब की पहली मंजिल जो है दूसरी मंजिल बनाने के लिए पहली मंजिल बनाना शर्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली मंजिल बनाए बगैर आप दूसरी मंजिल जो है वो बना लीजिए, समझे। और आज ख्याल से कीजिए कि लोग बेसमेंट में से पिलर बनाते हैं, जो पिलर है वही पहली मंजिल है, ऐसा नहीं है कि कोई दीवार होना ज़रूरी है। तो ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है कि नमाज में शर्त है इस्तक़बाल क़िबला, और बगैर इस्तक़बाल क़िबला की नमाज नहीं है। अलबत्ता ऐसी जगह जहाँ पर हमें क़िबला जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि हम तहर्री करें। तहर्री तहर्री के माना होता है तलाश, जुस्तजू, सर्च। तो अपने तौर पर हम कोशिश करेंगे कि उसको जानने की कोशिश करें कि क़िबला किधर हो सकता है। उसके लिए 2-4 मिनट खर्च करें, बाहर निकल के देखें, कोई मस्जिद के मीनार या गुंबद या उसके दर देखने की कोशिश करें, कोई अलामत देखने की कोशिश करें, दिन हो तो सूरज को देखने की कोशिश करें, उसका शेडो देखने की कोशिश करें, रात हो तो कुतुब तारा जो होता है, जो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे जो तारे होते हैं उनके जरिए नॉर्थ साउथ को डिसाइड करके ईस्ट वेस्ट को डिसाइड करें, और उसके जरिए क़िबला का रुख जाने की तहर्री करना ज़रूरी है। कोई जानने वाला हो, टोपी वाला हो, दाढ़ी वाला हो, तो उससे पूछे कि मेरी क़िबला किधर है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम से भी पूछा जा सकता है भाई पश्चिम किधर है। आपसे क़िबला नहीं पूछ सकते लेकिन पश्चिम पूछ सकते हैं। पश्चिम को बताएगा तो मान लीजिए, क़िबला बताएगा तो नहीं माना जाएगा, आप समझे। लेकिन चूंकि पश्चिम और क़िबला एक ही तरफ है, लिहाजा पश्चिम पूछ के आप तहर्री का हक अदा हो गया। लेकिन अगर आपने बगैर तहर्री के अगर आपने कोई साइड डिसाइड किया, आए देखा इधर ही है, नमाज आपको दोहराना है। अगर आपने तहर्री करके नमाज पढ़ी और बाद में मालूम हुआ क़िबला दूसरी तरफ था, तो दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने शरीयत के हुक्म को पर अमल कर दिया। यहाँ तक कि हमारे उलमाए अहनाफ लिखते हैं कि 2 लोग जंगल में जाएं, एक साथ जाएं, और एक जो है बगैर तहर्री के नमाज पढ़ने लगे, और दूसरा जो है वो तहर्री करे, उधर उधर ढूंढने की कोशिश करे, तहर्री करने के बाद वो नमाज पढ़े। तो जिसने तहर्री करके नमाज पढ़ा उसने पूरब की तरफ नमाज पढ़ लिया, और जो बगैर तहर्री के नमाज पढ़ा उसने क़िबला की तरफ नमाज पढ़ा। तो उलमा फरमाते हैं जिसने क़िबले की तरफ नमाज पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी, जिसने पूरब की तरफ नमाज पढ़ी उसकी नमाज होगी, क्योंकि उसने शरीयत का नमाज क्या चीज़ है भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानना है ना। जब कहा गया कि आप सोचिए, गौर कीजिए, कोशिश कीजिए, तो उसने कोशिश की मगर वो अपनी कोशिश में गलत हो गया, लिहाजा उसने शरीयत पर अमल किया और उसकी नमाज हो गई। और जिसने क़िबला की तरफ रुख किया उसने बगैर तहर्री के बांध दिया अपनी मर्जी, अपने नफ्स के फैसले पर, लिहाजा क़िबला उसे मिला तो उसने ढूंढा नहीं बल्कि बाई चांस उसे मिल गया। और इस्लाम चांस वांस पर भरोसा नहीं करता, चाहता है डिटर्मिनेशन चाहता है, हर चीज़ बिल्कुल तय और फिक्स चाहता है, ठीक है। ये सफर की हालत में चलती हुई ट्रेन में नमाज अदा कर सकते हैं? अक्सर उलमाए किराम की राय ये है कि चलती हुई ट्रेन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज नहीं होगी। बाज़ उलमा की राय है कि नमाज हो जाए। इख्तलाफ की सूरत में बचने ही की कोशिश की जाए तो अच्छा है। अगर ऐसा मैनेजमेंट हो जाए कि सब जो है उतर के आप जो है नमाज जो है आप अदा करें, तो आप उतर के नमाज पढ़िए, 2 रकत नमाज पढ़नी रहती है मैक्सिमम जो है, आप समझते हैं। 2 रकत के लिए ऐसा होता है, यहाँ से दिल्ली आप जा रहे हैं तो बदारशाह में और नागपुर में और इटारसी में और जो है झांसी में, हर जगह ये जगह मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है इसलिए नहीं, लेकिन अगर आप दुरंतों में बैठे हुए हैं तो मेरे भी अपना रुझान ये कि नमाज अदा कर लीजिए। मेरी ज़ाती राय ये कि आप नमाज अदा कर लीजिए। मैक्सिमम ये है कि वापस लौट के आप उसको दोहरा लीजिए। अगर आपकी नमाज नहीं हुई है तो दोहराने वाली नमाज से आपकी नमाज हो जाए, कम से कम जमात वक्त छोड़ने का मुआवजा आपसे नहीं होगा। अगर पूरी तरह से खड़े होकर पढ़ने का मौका मिला तो खड़े होकर पढ़िए, नहीं बैठ के पढ़िए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, हमारे बाद लोग नमाज पढ़ने के शौक में, ऐसा एक बार मैं था गाड़ी में और एक 3 लोगों ने जमात बनाकर और बाथरूम को रोक लिया। लोग इतना बुरा भला कह रहे थे, इतना बुरा भला कह रहे थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं नमाज पढ़ने वालों पर गुस्सा है जबकि नमाज पढ़ने से खुश नहीं। आपको थोड़ा सा
इतना भी नहीं करना चाहिए कि गाड़ी आपकी नहीं है या पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप इस्लाम को ऐसे ना पेश कीजिए कि लगे साहब बिल्कुल जो है वो जाहिल है, अनकल्चर्ड है। वो पूरा एकदम उन्होंने बाथरूम घेर लिया और इतने खुशूस नमाज पढ़ रहे थे कि जैसे कि अपने डाइनिंग रूम में पढ़ रहे हैं, पूरी लाइन यहाँ से वहाँ तक गैलरी में बाथरूम जाने वालों की लगी। इसका ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आसानी से हो जाए तो हो जाए। दूसरों को तकलीफ देना बेहद मना है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। किसी के रुकावट डालना, किसी को वो करना, इसीलिए सड़क वड़क को आकुपाई करना जो है इस्लाम इजाज़त नहीं देता उसकी, जब तक कि प्रॉपरली जो है उसको परमिशन न लीजिए। उसका अल्टरनेट आप बताइए। इस्लाम जो है मतलब पब्लिक यूटिलिटीज को डिस्टर्ब करने को बहुत सख्त मना करता है और ये हराम है। लिहाजा फिर भी मेरा अपना ज़ाती रुझान है कि अगर 2 रकात वगैरह में है तो नमाज पढ़िए। ये मेरा अपना ज़ाती पर्सनल, हम जिन उलमा से रुजू करते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो कहती है कि नमाज नहीं होगी। हमने बीच का रास्ता निकाला कि वक्त पे नमाज वक्त में न जा नहीं पाए, नमाज पढ़ लें, वापस आके दोहरा दें, कोई हर्ज नहीं। जी, इतना नमाज ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर आप सजदा करें तो ये नाक जो है वो जम सके, जो है पेशानी और नाक जो है वो जम सके। बल्कि नमाज 8 पार्टा वाली होती है, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, 6 हो गए, 1 नाक और ये 8 होते हैं। इन 8 का जमीन पर बैठना जरूरी है। तो अगर आप कोई ऐसे गद्दे फॉर्म पे नमाज पढ़े जिसमें बैठ लिया तो नम नहीं होगा, वो नमाज दोहराने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जम जाता है, बाद ऐसे होते हैं कम होता है, उस पर जम जाता है, जम जाए तो तख्त पे कभी कभी बहुत पतले रुई के गद्दे होते हैं जो दब के बिल्कुल सेट हो जाते हैं, तो उन पर नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा मोटे गद्दे पर नमाज नहीं होगी। तख्त पे पढ़ने का हुक्म क्या है? जमीन पे हाथ है हमारे नहीं, तख्त पे अगर नहीं, तख्त इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। जिन तख्त पर जो मोटे मोटे गद्दे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो तख्त जैसे सीधे हमारे कुछ नॉर्थ इंडिया में घरों में 2-4 ड्रेस पड़े ही रहते हैं जो है, और नमाज के काम आते हैं, उस पर जिस पे जमना चाहिए बस ये। और कोई मेरी कज़न है वो अभी सऊदी में है, तो वो उनके पास उतनी आमदनी नहीं कि वो अपने माँ बाप के साथ रखते थे, तो वो करना हज करना चाहते, तो इसके लिए उनको अपने वालिदैन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इबादत से ज़्यादा किसी भी अल्लाह ताला की किसी काम में किसी की इजाज़त ज़्यादा जरूरत नहीं है। समझिए अल्लाह का फर्ज है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरी मरतबा माँ बाप से इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, शौहर से इजाज़त चाहिए और माँ बाप से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। शादीशुदा औरत को माँ बाप से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई मामू की बेटा नहीं, उनको भी हज करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है। जिस पर हर फ़र्ज़ है उस पर तो कतान इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जिस पर फ़र्ज़ नहीं है वो अगर पूछ ले तो काले सवाब है, मगर उसको भी ज़रूरी नहीं है कि पूछे, ज़रूरी किसी पर नहीं। सर ये तशहुद में जब ये उंगली उठाते हैं तो कुछ लोग ऐसा हल्का बना के रख देते हैं मांडी को, कुछ लोग छोड़ देते हैं हाथ, तो असल तरीका क्या है? असल तरीका ये है कि आप तशहुद आप ऐसे रखे रहेंगे, अशहदु अल्ला पर उठाएंगे, इल्ला पर गिरा के बराबर ला पर उठाएंगे और इल्ला पर गिरा देंगे। लेकिन याद रखिए कि ये सब मुस्तहब्बात के उसमें से है। इन छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन वगैरह किसी से मत कीजिए। किसी का दिल दुखाना ये सब कैसे आप करते हैं इसके मुकाबले में ज़्यादा खराब। आप समझते हैं ना, अपनी नमाज पर कंसंट्रेशन कीजिए। इमाम गज़ाली के भाई जो है उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, तो इमाम गज़ाली ने आके अपनी अम्मा से कहा कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमको पूरी दुनिया हुज्जतुल इस्लाम मानती है और हमारी इमामत पर पूरी दुनिया के इत्तेफाक है, हमारे छोटे भाई जो वो पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर होती है। तो इमाम ने पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा जब ये करते हैं तो इनके दिमाग में मसले मसाइल और हदीस और कुरान कहता है अल्लाह की तरफ तवज्जो इनकी कम रहती है, इसलिए मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। सब तो माँ ने कहा बेटा तुम भी तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं, अपने भाई की तरफ मुतवज्जे हो। अरे वो तो कम से कम कुरान हदीस की तरफ मुतवज्जे हैं, तुम तो इंसान की तरफ मुतवज्जे हैं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पीछे नमाज पढ़ना। तो ये दूसरों के पीछे नहीं, ज़्यादा नहीं, कोई पूछे तो बताइए, या आप ये जाने की जिसको बताएं उसको एप्रोप्रिएट जगह बताएं। 4 आदमी के सामने किसी को बताएंगे तो वो बुरा मानेगा, सच्ची बात भी बताएंगे तो बुरा मानेगा। ये सब तरीका बहुत ख़राब हमारे सोसाइटी में हो गया। ये सब हमारा नफ्स है, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के लिए या रसूल के लिए या दीन और शरीयत के लिए हम नहीं करते, इसी अपने नफ्स के लिए करते हैं, दिखाने के लिए बैठे कि हम जानते हैं तुम नहीं जानते। मतलब किसी को बताइए तो तन्हाई में बताइए, समझे, जो ऐसे खुशगवार मूड में बताइए वो कबूल करें, ठीक है। और एक मसला वो एक्सपीरियंस शो करने का कैसा है? अभी मतलब 2011 में मैंने एमसीए पास आउट किया और अभी तक जॉब नहीं मिल पाया, कोर्स करने के लिए
बीच में जो गैप आ गया उस गैप को हाइड करने के लिए क्या एक्सपीरियंस शो करना जायज़ है? जो ऐसा करने का वो जायज़ नहीं करना जायज़? देखिए ऐसा है कि मामला में किसी धोखा किसी को भी नहीं देना चाहिए, याद रखिए। और सिर्फ आप इतना जानिए, चीट नहीं किया जा सकता किसी को। अब आप बेहतर जानते हैं कि चीट बताने की आपको जरूरत नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोग घंटों तकलीफ कर सकते हैं इस मौजूद पर। समझे? धोखा किसी को नहीं। एक सवाल है, जैसे एक दिन में 8 पहर मानते हैं तो पहर कब से शुरू होता है, कौन सा मतलब पहला पहर? अरे 8 तारीख 24 जो है वो ऐसा है कि ये कोई दीन और शरीयत की बात नहीं है। दोपहर मतलब ये जो दोपहर का मतलब ये हुआ कि सूरज ढलने के बाद, हाँ समझ रहे हैं? उसके बाद सह पहर होता है असर की नमाज के बाद। यही दोपहर और सह पहर मैं जानता हूँ, और एक पहर और 4 पहर मैंने कभी सुना भी नहीं। ये समझिए 8 पहर का मतलब वो 3-3 घंटे का एक पहर होता है। तो पहला पहर कब से शुरू होता है? मैं बताइए दोपहर अगर जवान के बाद से है तो जवान से पहले 3 घंटा जोड़ लीजिए। देखिए ये इसका कोई फिक्स नहीं है। टॉपिक के अंदर सिर्फ 3 सवाल देते हैं, तो क्या नमाज से मुताबिक की कोई सवाल नहीं होता है? तो जो जिस बंदे ने अगर नमाज नहीं पढ़ी तो उसका क्या आदाब उसको कभी मिलता है या फिर वहाँ कमाल आप करते हैं, वजू जो है पेशाब की छींट से न बचने वाला, अगर उसको आजाद मिलेगा तो नमाज छोड़ने वाले कहाँ से बच जाएगा उसको? आप वहाँ पर ऐसा सजा, सवाल तो यही कि पूछे जाएंगे, लेकिन गुनाहों की सजा तो मिलेगी ही उसको यकीनन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। एक सवाल था, जैसा कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से तकसीम किया जाता, क्या यही मसला अक़ीक़े के गोश्त के? कुर्बानी के गोश्त में ये है कि मुस्तहब है कि 3 हिस्सों में कीजिए, ज़रूरी नहीं। मुस्तहब तरीक़ा ये है कि 3 हिस्से में कीजिए। आप हम बाहर के रहने वाले हैं, एक साल हमने किया तो हमने सिर्फ जो है 3 पाव गोश्त ले लिया, बाकी सब बांट दिया, क्योंकि हमें न पकाना आता है ना कुछ, खाली तबरकर मैंने रख लिया, कोई मिल जाएगा तो पका देगा, इत्तेफाक से स्टूडेंट मिल गया उसने पका लिया, हमने खा लिया, वो ना वो भी ना रखते वो भी बांट देते थे। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। आपके घर में 25 लोग रहते हैं, समझे, तो मेरे ख्याल में अगर बिरयानी बनवा दीजिए तो बकरे की बिरयानी 25 लोग वैसे खाने हैं प्लान से। तो ये मुस्तहब ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ, एक आप लीजिए, एक जो है दोस्तों में बांटिए और एक गरीबों को दीजिए, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, और अक़ीक़े में भी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं है, लेकिन ये कि गरीबों को नहीं भूलना चाहिए हर हालत में। जो मर्द है या कोई नौजवान लड़का जिसकी शादी में वो अगर परहेज़गार है, तक़वा वाला है, इसका अगर इंतकाल होता है वो जन्नती होता है। जगह कोई हम लोग नौजवान होते हैं और उनके लिए भूले थे, और वहीं पास कोई एक लड़की है और एक औरत है, वो भी मतलब परहेज़गार तक़वा वाली, तो उनके लिए कोई जन्नत में क्या है? वो मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया। देखिए आप क्या समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो जवाब में ही सेटिस्फेक्शन होता है क्या? मतलब ये कि आप आपने कभी सुना कि मतलब मर्द जो है एक मर्द एक से ज़्यादा जो है पार्टनर की ज़रूरत महसूस करता है? क्या कभी सोचता है? क्योंकि औरत भी चाहती है कि एक ज़्यादा पार्टनर मिले, चाहती ही नहीं। जो औरत को नहीं चाहती, हम लोग कहा उसके लिए चाहते हैं। ये एक बात बता रहे, लेकिन वहाँ क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला वहाँ इंसाफ फरमाएगा, अल्लाह ताला वहाँ इंसाफ फरमाएगा, सबके साथ अदल होगा। और एक चीज़ बता दें आपको, बहुत ही वो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ ग्रामेटिकल से कह रहा हूँ कि हूर जो है अरबिक ग्रामर के मुताबिक ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की जमा है। ये बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, कहीं डिक्शनरी में आप देखिए तो अहबर कहते हैं तिरछी आँख वाले को, हौरा कहते हैं तिरछी आँख वाली को, और हौरा की भी प्लूरल जो है वो हूर होता है, अहवर का भी प्लूरल जो है वो हूर होता है। अगर आप ग्रामेटिकल देखें तो वहाँ गुंजाइश मर्द औरत दोनों के लिए है, यानी मर्द के लिए हूर, औरत के लिए भी हूर हो सकती है। हूर का मतलब हूर लफ्ज जो है, वर्ड हूर जो है ये प्लूरल है, और इसकी सिंगुलर जो है मैस्कुलिन में अहवर और फेमिनिन में जो है वो हौरा आती है। ये अजीब व गरीब बात है कि हूर जो है वो दोनों के लिए। अब अल्लाह ताला वहाँ क्या फरमाएगा, लेकिन इंसाफ होगा, ये ईमान रखना चाहिए। ठीक है, इजाज़त जी। जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उसके बाद जो सुन्नत होती है, काफ़ी लोग तो देखते हैं जगह हट के सुन्नत करते हैं, उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि मतलब ये कि नमाज में कई जगह में नमाज अदा करें, ताकि जहाँ हम नमाज अदा करते हैं क़यामत में वो जगह जो है हमारे लिए गवाही देंगी कि अल्लाह तेरे बंदे ने यहाँ नमाज पढ़ी है। तो ये एक रवाज था, कि कुछ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और काफ़ी लोग देखे कि वेट करते हैं, अरे वेट नहीं करते, धक्का देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरह की कि धक्का लेके जो है दूसरी जगह हासिल की जाए।
समझे, ऐसा खुशी के लिए अगर जगह हो सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको किसी से धक्का न लगे, सब कुछ किसी को आपसे तकलीफ न पहुंचे। जिंदगी में हर जगह, बाजार में, मस्जिद में, हर जगह इस चीज़ को रखिए, ये बताते खुद एक इबादत है कि किसी को आपसे तकलीफ न पहुंचे, किसी से आपको रंज न पहुंचे, कोई आपके लिए किसी के लिए आप परेशानी के सबब न बने। ये सबसे बड़ी अल्लाह के रसूल ने फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, पत्थर भी हटाना ये इबादत है। तो मैं ये हमेशा ख्याल रखिए, मस्जिद में तो बदरिए औला रहना चाहिए। लोग धक्का देके जाते हैं और धक्का देके घुसते हैं, गर्दने फैला के जाने वाले के लिए बड़ी सख्त वही आई है। मैं इजाज़त चाहूँगा आपके साथ बैठा, मेरे साथ कुछ मेहमान आए हुए हैं, मेरे घर में मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनसे कहा कि मैं आ जाऊँगा और वहीं पे है, ठीक है। अस्सलाम।